on the 7th day of the English marathon, we are going to learn about there was, there were, the past tense, and there will be, the future tense, to show existence. जैसे इससे पहले हमने there is और there are का यूज किया था, अब हम आज उसी का past tense कर रहे हैं और हम there was और there were का यूज करेंगे और फ्यूचर में देयर का यूज करेंगे देयर विल बी के सेंस में। और उसके बाद एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सा टॉपिक है, मेरा फेवरेट टॉपिक है, दिस विच इज ऑर्डिनल एंड ऑर्डिनल नंबर्स। एंड यू सी टुडेस क्लास विल मोर लाइक अ मैथमेटिक्स क्लास देन इंग्लिश क्लास। आज की क्लास जो है आपको मैथ्स की क्लास ज्यादा लगेगी और इंग्लिश की क्लास कम लगेगी, बट यू सी numbers play an important role in our conversation. Most of the time when we have to quantify some things, some nouns, so we do have to take the help of numbers, which may be either cardinal or ordinal, to tell the positions or to the quantity of something. So this is a very interesting topic, and at the end we'll be having fun with tongue twisters. Tongue twister is the best activity to make yourself fluent in English and to gain confidence, because you see, when you are playing with tongue twister, so you have to focus on what you are saying. Okay, only you have to think on it and then simultaneously have to speak it up in a quick way. Okay, so it's like that. Okay, so now we are going towards the next slide which we have here, the second one. Okay, so what did we learn in the class? Everybody can recall it. The topic was very simple, so I'm not going to repeat it, because you see, I told you already that today's class will be lengthy because the topic is a bit long, right? So, but superficially, I can just tell that in the last class, we did there is, there are. We talk about the positions of things in the picture, top, mid, top right, left right, middle right, and blah, blah. And quantifiers showing words showing quantity of a noun, right? Some, little, much, more. And we also did questions with quantifiers, and at the end we did the pattern, a lot of different patterns using this is. Okay, there is no point in, there is no point, no way, and a lot more, right? So now I'm moving quickly towards the next. Okay, this is a question for the day. I'll try my best to finish the lecture on time, and do remind me that at the end we will talk about this question, right? Okay, now, so come towards the vocabulary section, the favorite part of the class, because you see, if you won't have vocabulary, you won't be able to make yourself a better speaker, right? But here you might have noticed one thing, like here in front of the vocabulary, they've given the mention like British native words. Now, what is the thing? Like there are two types of English in the market. One which is spoken by the pure Americans, and the others which is spoken by the British people, the United Kingdom one. And there is a conflict that which English is better, but you see, academically, or when we are doing IELTS, TOEFL, or PET kind of test, so we always focus on the British English. So that's more formal and more academic, right? So we will also here at College of English focus on British English. There's a particular accent of the British people, which you can see. There are a lot of videos. When you search on the YouTube, you will find that there are a lot of videos which just give you the accent training, right? Okay, so I'm starting with the vocabulary words, and I need a helper. I need a helper here. So here, who is going to help me? Who is going to help me here? I will like Mashallah, Isha is also there. Okay, Dua, Ikra. Okay, ji. Waqas sir, I just want to unmute you, and just I want you to read this vocabulary for us. Ji, Waqas. comprehend समझना, pavement, footpath, ब्रोली छतरी, लो बैतुल खला, जी. क्वी कतार, मेट दोस्त. It's not Q, it's Q. Q कतार, जी. मेट दोस्त, कफ खुश. Chuff. It's not cuff, it's chuffed. Chuffed माने होता है खुश. बाजू का ये काफ की आवाज भी निकालते हैं ना. जी जी बिल्कुल, लेकिन सी एच जो है वो च की आवाज निकालता है, chuffed. ओके, एस एच जो है वो श की आवाज निकालता है. ओके जी. naked, के साइलेंट है. ओके, यस थका हुआ. यस. अब ये चप होगा. नो, चैप. नॉट चैप. टेली
ठीक है, टेलीविजन। ओके वकास, थैंक यू सो मच। ओके जी। अच्छा देखिए, मेरी बात सुनिए, यहाँ पे हमारे पास कुछ vocabulary, we'll try to use them in sentences so that you will have a better understanding of all these words which we are doing in this slides. And all these words are like they will assist you or help you in becoming more sound like the British natives, right? So for example, comprehend का मतलब तो समझना। आप लोगों ने अपने बच्चों की कॉपीज में अक्सर देखा होगा जहाँ पे लिखा हुआ होता है कि comprehension. Have you ever noticed that? Comprehension. Comprehension का मतलब क्या होता है? There is a long kind of paragraph, and at the end of that paragraph, you've got a lot of questions, fill in the blanks, or multiple choice questions, and you have to understand that paragraph. And with the help of that understanding, you have to solve these exercises which are given, right? So comprehend का मतलब होता है समझना. But it is more like in American English, we normally say understanding, and that's the more common one. But comprehend, समझना. I have comprehended your question. मैं आपका question समझ चुकी हूँ. Okay. Then we have got the next word, which is pavement. Pavement is basically जो आपके जो main roads होते हैं, वहाँ पे हमारे यहाँ पाकिस्तान में तो एक culture है, we have that yellow and black kind of, you see blocks which indicates that's a pavement. Pavement का मतलब होता है footpath. Footpath means the path which is given for the pedestrians to walk on. Pedestrians वो लोग होते हैं जो कि पैदल चलते हैं, उनको हम pedestrians कहते हैं. So pavement, footpath. Okay. There was a beggar sitting on the pavement yesterday. There was a beggar sitting on the pavement yesterday. Okay. कल दिन में कल यहाँ पे एक फकीर जो था वो इस फुटपाथ पे बैठा हुआ था. Brolly. Now Brolly is basically a very हम हर वक्त umbrella का वर्ड यूज करते हैं. ब्रॉली इज ब्रिटिश में दे प्रेफर टू कॉल, आपकी जो छतरी होती है, दे कॉल इट ब्रॉली. ओके. देन यू गॉट लू का मतलब होता है बैतुल खला. ठीक है. द इंग्लिश पीपल और द रॉयल पीपल, they do have a lot of different kind of words for this washroom. Sometimes they call or refer it as restroom. Okay. Sometimes they just call it like एक और वर्ड है बहुत अच्छा इसके लिए, फॉर दिस लेबेंट्री. ओके. दे आल्सो कॉल इट लू भी आपका. ठीक है. एमिनिटीज, आपने अक्सर अगर आप किसी बहुत अच्छे 7 स्टार 5 स्टार होटल में जाएं तो वहां पे जो है वहां पे लेबोरेटरी लिखा हुआ होता है. they do not write it bathroom, right, or washroom, or either they have written it facilities. Okay. or they can also write like comfort room, CRB कहा जाता है. इसके अलावा वाटर क्लोजेट भी कहते हैं, लेबोरेटरी भी कहते हैं, और पाउडर रूम भी कहते हैं. When you are sitting on a for example, you're sitting in a restaurant having your dinner, so it looks very weird if you said, you see, I want to go to the washroom. Okay. So a better word is I'm going to the powder room. Okay. Just do remember, I'm reminding, like you can say it restroom, toilet, laboratory, powder room, water closet, amenities, sanitary facilities, or comfort room. So there are a lot of, and loo, last but not the least, the loo. Okay. So that to sound or to make you more British. Now Q का मतलब होता है कतार. ठीक है ना. जो आपकी अमेरिकन इंग्लिश में होती है उसमें हम कहते हैं stand in the line. Okay. or make a line. But in British we call it queue. Make a queue. Please, to submit your bills, you need to stay in the queue. Okay. यानी कि बिजली का बिल भरने के लिए आपको जरूरी है कि आप लाइन में खड़ी हो जाए. ओके. मेट मतलब दोस्त, मेट, क्लासमेट, रूममेट. Okay. so we do have a lot of words from this word. And then chef का मतलब तो खुश रहता है, खुश रहना, खुश होना. Okay. खुश. The children are very chuffed today because you see their best friend is coming to stay with them. Okay. Then we have got knackered matlab thaka hua. I'm so exhausted, I'm so drained, I'm so knackered today because you see I have given a 12-hour shift continuously. I've done a 12-hour shift continuously, or you can say I have done my 2 assignments in a row, so that's why I'm so knackered, right? Then we have got chap. जो आपकी इंग्लिश लिटरेचर होता है वहां पे ये वर्ड चैप जो है फॉर बॉय, और एक और वर्ड होता है लेड, LED लेड, वो भी यूज किया जाता है लड़की के लिए लेस और लड़के के लिए लेट. Then we have got tele is basically the television, right? So I hope there is no. Isha, you have raised your hand. May I know, Isha, what you want to know? Okay, Isha, मैं आपको म्यूट करती हूँ. जी Isha, please unmute yourself. You're asking any question, Isha?
No, ma'am. Okay, your hand was raised. Okay, okay, so I'm moving towards the next slide because we have a lot of slides. Now this one. Okay, for this I want Isha, please will you help me in reading this? Isha. Phrase for daily uses. Daily use. No, Phrase. excuse me, no phrases. It's not phrase, it's phrases. Plural. Okay? Phrases. Yeah, For phrases. G. phrases for daily use. Right. Phrases. Both the students were fighting like cats and dogs. G. क्या दोनों मतलब तलबा होता है? शदीद लड़ रहे कुत्ते बिल्लियों की तरह लड़ रहे थे। ओके ओके, सो दोनों तलबा शदीद लड़ रहे थे। शिद्दत को शो करने के लिए हम क्या फ्रेज यूज करते हैं? फाइटिंग लाइक कैट्स एंड डॉग्स, राइट? यू सी द पीपल इन द क्यू टू सबमिट देयर बिल वर फाइटिंग लाइक कैट्स एंड डॉग्स। हमारे यहाँ होता है ना ये कभी कभार। ओके जी, नेक्स्ट ईशा, नेक्स्ट वन। They cannot deduct us for I have a card up my sleeves. Please repeat the sentence. Repeat, it was not clear. And if you can raise your voice. You see, you're a bit not very well audible. They cannot deduct us for I No, have a this is card not up my deductu. sleeve. Excuse me. Please uh, Defeat be careful while reading. They can't defeat us. us. Defeat का मतलब होता है शिकस्त देना और हराना। वो हमें शिकस्त नहीं दे सकता क्योंकि वो अपने बाप को देखकर जैसे डर गया था। ओके, यू सी दे can't, नहीं आपने क्या कर दिया? दो मिक्स कर दिया मैडम। इसकी जो ट्रांसलेशन है वो हमें शिकस्त नहीं दे सकते क्योंकि मेरे पास खुफिया मंसूबा है। हैड टू हैव अ कार्ड अप माय स्लीव का मतलब होता है खुफिया मंसूबा होना, प्लान बी। ठीक है, तो वो कह रहे कि दे कांट डिफीट अस, ये हमें हरा नहीं सकते। ओके, कोई मसला नहीं है। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस सॉरी, कीजिए। वो हम इंग्लिश में पढ़ सकते हैं। इट्स ओके ईशा, इट्स ओके। He was like a scaredy cat up us seeing his father. अपॉन वो सीइंग हिज अपने बाप फादर। को देखकर जैसे डर गया था। यस, यानी अपने बाप को देखते ही वो क्या भीगी बिल्ली बन जाता है। ठीक है, बहुत ही डरपोक सा हो जाता है। थैंक यू ईशा, थैंक यू सो मच। नाउ आई वुड लाइक मिस्टर कवि प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ। कवि मुस्तफा, एंड आई वांट यू टू रीड 3 सेंटेंसेस। ये 3 सेंटेंस आप पढ़ेंगे कवि। यस, Alaikum. वालेकुम अस्सलाम कवि Morning, साहब। madam. How are जी, you? अल्हम्दुलिल्लाह। I'm sorry, madam. 10 days ago, so very my feeling not well, so not attend to join to class. So I'm sorry, so sorry. Okay, it doesn't matter, but do have a connection with the you see with the PDFs and the videos which we are sharing with you. Please do have your focus on it, right? Thank you, thank you. G. Okay, number 4, sentence number 4 till 6 you have to do. I've highlighted it for you for your ease. Number 4, madam. G. Their fight made them all black and blue. Black and blue. Black and blue एक वो है फ्रेज है जिसका मतलब क्या होता है? जख्मों से शदीद जो मार कुटाई होती है ना, उसके बाद आपने देखा है कि कहीं आपके जिस्म पे नीले और इस तरह के काले से निशान पड़ जाते हैं। ठीक है जी। Yes. जी, तो कवि साहब ट्रांसलेशन पढ़िएगा इसकी। आपकी लड़ाई से क्यों थोड़ा सा मुझे क्लियर नहीं। इनकी लड़ाई ने उन्हें Now it's better. Now it's better. जख्मों सॉरी मैडम। मैं कह रही हूँ आप नजर आ रहा है, बेहतर है। एक सेकंड जी, अब बेहतर है। जी। इनकी लड़ाई ने उन्हें मैडम जख्मों में ढांप उनकी दिया। लड़ाई ने उन्हें जख्मों से ढांप दिया। वेरी गुड। ओके, नेक्स्ट सेंटेंस कीजिए। Yes. That a girl attitude is a big read a feeling. नहीं, दोबारा से पढ़िए। That अब मैं पढ़ रही हूँ, आप मेरे साथ साथ पढ़िए कवि साहब। That girls. Yes. That that girl's attitude is a big red flag. Is a big red flag. अच्छा कवि साहब, क्या होता है? सफेद झंडा किस चीज की निशानी होता है? दोस्ती की। और रेड झंडा किस चीज की निशानी होता है?
खतरे की, दुश्मनी। तो वो खतरे की या दुश्मनी की आप कह सकते हैं। तो कह रहे हैं कि वो जो उस लड़की का जो रवैया है ना वो खतरे की घंटी है, लाइक अच्छा नहीं है। Yes, ठीक है, ओके जी, अच्छा नेक्स्ट नहीं। पढ़िए, नेक्स्ट पढ़िए। Uh, uh, the the thief was behind bears for 4 years. वेरी गुड। द थीफ वॉज बिहाइंड बार्स, बार्स कहते हैं सलाखों को, ओके। और ये एक फ्रेज है जो हम जेल की सलाखों के लिए स्पेशली यूज करते हैं, कि जो चोर था वो क्या 4 साल से सलाखों के पीछे था। द थीफ वॉज बिहाइंड बार्स फॉर 4 years। मैं कभी साहब प्लीज इस सेंटेंस को एक दफा और पढ़िए। रिपीट कर दूं मैडम? जी जी, द थीफ वाले को रिपीट कीजिए आप। The fight made them all black and blue. सारे नहीं 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 नहीं, सिर्फ ये जो सेंटेंस है ना थीफ वाला, सलाखों वाला, ये मैं चाह रही हूँ कि आप रिपीट कीजिए। The thief मैम थोड़ा सा उसको रिपीट कर दो कि मुझे थोड़ा पढ़ने में मसला हो रहा है। DHIEF इसको Yes, कैसे पढ़ा this is जाएगा? called thief. Thief. Say after Thief, me. thief, No, thief, thief. थ की आवाज है ये। Thief. thief was behind bars Bars. for 4 years. Very good. देखिए For 4 years. तकी साहब, ये सारी स्लाइड्स आपको बाद में सेंड कर दी जाती है क्लास के बाद, तो आप इसको इजीली बार बार रिपीट कर सकते हो, ओके। Right. ओके जी, ओके। नाउ आई वुड लाइक टू इनवाइट somebody else। तकी साहब आप अपने आप को म्यूट कर लीजिए प्लीज। नाउ आई वुड लाइक टू इनवाइट मिसेस यास्मीन, प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ, और लास्ट के जो सेंटेंसेस वो आप पढ़ेंगी यास्मीन जी। Yes, ma'am. जी। I love my parents. Yeah, I'm a student, so my I love long time started my education. So before left my 15 years left my education. So then started after before 10 days ago to start to education continue. Mr. So Taki, my Mr. must Taki, the thing is that you see, the good thing about you है that at least you have taken a step to restart. It's a very, you see, strong step. So don't worry, Allah will help you. Allah Pak never wastes the hard work of anybody. Okay? Okay जी, जी Mrs. Yasmin. Yes, ma'am. I love my parents to death. Okay. अपने वालिदैन से बहुत प्यार करता हूँ. ठीक है. Physiological questions can be No, food it's not for thought. physiological. It's philosophical. Sorry, philosophical questions can be food for thought. No, बस food for प्यारना thought. सवालात फिक्र Food, की food for thought. food for thought. Not बस thought, प्यारना it's सवालात thought. Thought. thought Food for thought. बार बार बोलिए इसको यास्मीन। Food for thought, food for thought, food for thought thought. thought. Yes, बस good, very प्यारना good. सवालात फिक्र की गजा हो सकता है. Okay, very good. She can go to hell for all I care. वो जहन्नुम में जा सकती है, मुझे परवाह नहीं है. ठीक है जी। I am gonna get in deep water for breaking the door. दरवाजा तोड़ने की वजह से मैं बड़ी परेशानी में पड़ जाऊंगा. ओके जी। सो देखिए मेरी बात सुनिए, अब आप यास्मीन अपने आप को म्यूट कर सकती हैं। इन फ्रेजेस Yes. बहुत ही बेहतरीन फ्रेजेस हैं, इफ यू यूज देम इन योर डेली कन्वर्सेशन। फाइटिंग लाइक कैट्स एंड डॉग्स, आपको पता है जब नॉर्मली कोई लड़ रहा होता है बहुत ही बुरी तरह, तो हम कहते हैं व्हाई दे आर फाइटिंग लाइक कैट्स एंड डॉग ओवर दिस ट्रिफलिंग मैटर। ट्रिफलिंग मैटर मतलब छोटे से मामले पे ये इतना शदीद क्यों लड़ रहे हैं, ओके। देन वी हैव गॉट दे कांट डिफीट अस, वो हमें शिकस्त नहीं दे सकते। फॉर आई हैव अ कार्ड अप माय स्लीव, कार्ड अप माय स्लीव का मतलब ये होता है कि मेरे पास एक खुफिया मंसूबा है। जी वकार साहब जी। मैं कहता कि शी कैन गो टू हेल्प फॉर ऑल आई डोंट केयर होना चाहिए वहां पे. नो 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 नो, डोंट इट्स केयर नॉट होना लाइक चाहिए. दैट। मैं भी आती हूँ, मैं आपको बताती हूँ, वेट। ओके जी। सो ही वाज लाइक अ स्कैर्डी कैट अपॉन सीइंग हिज फादर। अपने बाप को देखते ही वो भीगी बिल्ली बन जाता है, जब वो भीगी बिल्ली जैसा डर जाता है। Their fight made them all black and blue. उनकी लड़ाई ने उन्हें जख्मों में ढाप दिया, यानी शदीद जख्मी कर दिया। Black and blue is a phrase when you use when you are badly injured. Okay, that girl's attitude is a big red flag. भाई वो तो इतनी arrogant है, इतनी pig headed है, इतनी stubborn है कि भाई उसका जो attitude है वो तो क्या है, खतरे की घंटी है भाई। ठीक है जी।
फॉर एग्जाम्पल आप किसी के अगर रिश्ता लेने गए हैं और वो जो लड़की सामने वाली है वो बहुत ही ज्यादा एरोगेंट है, तो आप कह सकते हो माय गॉड दैट गर्ल एटीट्यूड इज अ बिग रेड फ्लैग। आप जो है लड़के की माँ को ये सलाह दे सकते हैं। ठीक है। ओके, द थीफ वाज बिहाइंड बार्स फॉर 4 years। चोर जो था वो सलाखों के पीछे 4 साल से था। ठीक है। आई लव माई पेरेंट्स टू डेथ, आई लव मेकिंग पेंटिंग्स टू डेथ, यानी कि मुझे बहुत ज्यादा पसंद है या बहुत ज्यादा कोई काम को आपको, लेकिन बेहतर है कि आप लोगों के लिए इस फ्रेज को यूज करें। आई लव माई सिबलिंग्स टू डेथ, आई लव माई मदर टू डेथ, यानी कि मैं बहुत ज्यादा किसी को, जिससे जब आप मोहब्बत करते हैं तो उसके लिए हम ये फ्रेज यूज करते हैं। फिलोसफिकल क्वेश्चंस कैन बी फूड फॉर थॉट। फूड फॉर थॉट ये होता था कि अक्सर जो पहले प्रोग्राम्स आते थे तो एंड में एक उसका एक सेक्शन होता था जिसमें लिखा होता था फूड फॉर थॉट, यानी प्रोग्राम के एंड पे वो एक आपको क्रिटिकल थिंकिंग का सवाल देते थे जिसपे आप सोचते थे। और ठीक है, तो ऐसे जैसे कि हम जानते हैं कि आवर ब्रेन वर्क्स मोर बेटर when it is given or task, it is continuously in use when we are using our brain. So basically brain is like a muscles, जैसे हम एक्सरसाइज करके अपने मसल्स को बेहतर बना लेते हैं, सिमिलरली ब्रेन का भी यही केस है। ठीक है। तो फिलोसफिकल क्वेश्चन जो होते हैं वो क्या होते हैं, आपको सोचने पे मजबूर करते हैं। फूड फॉर थॉट का मतलब क्या होता है, फिक्र की ग़िज़ा हो सकते हैं। ठीक है। शी कैन गो टू हेल, वो जहन्नुम में जाए, ठीक है, या जा सकती है। फॉर ऑल आई केयर, यानी मैं फॉर, अच्छा जो वकास साहब का सवाल था, फॉर ऑल आई डोंट केयर नहीं होगा। ठीक है। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी आपने उसको जहन्नुम में डाल दिया है। ठीक है, क्योंकि आपने ये नहीं कहा कि मैं परवाह, देखिए आई केयर एंड आई जैसे हम कहते हैं फॉर ग्रांटेड, तो इन लफ्जों में ऑलरेडी ये सेंस छुपा होता है कि आप परवाह नहीं करते। सो यू डोंट नीड टू यूज द वर्ड डोंट विद इट। शी कैन गो टू हेल्प फॉर ऑल आई केयर, यानी मैं तो सिर्फ यही चाहती हूँ कि वो भाई, मैं मुझे उसकी कोई परवाह नहीं है, वो जहन्नुम में जाती है तो जाए। आई एम गोना गेट इन डीप वाटर फॉर ब्रेकिंग द रो। अच्छा, गेट इन डीप वाटर और इसी से मिलता जुलता एक और फ्रेज है गेट इन हॉट वाटर। उसका मतलब ये होता है किसी मुसीबत में फंस जाना, किसी परेशानी में फंस जाना। ठीक है। तो दरवाजा तोड़ने की वजह से मैं बहुत ज्यादा परेशानी में पड़ सकता था या पड़ जाऊंगा। राइट। सो आई होप योर क्वेश्चन इज आंसर्ड। Okay, next we have got this it's a kind of a small activity। अगर आप में से कोई एक्टिविटी करना चाहता है तो मैं अनम्यूट कर देती हूँ। Like for example, I would love to unmute Hifza. Please unmute yourself. And Hifza, tell me the name of at least 10 things from this picture. जी Hifza, is it clear now? Okay, ma'am. जी, Yes, कोई से ma'am. एक सेकेंड, कोई सी भी 10 जो वो है उनके आपको मुझे बताने हैं नाम। आप नंबर बताइएगा और फिर ऑब्जेक्ट बताइएगा। ठीक है सब, चलें हिफ्जा Okay. जी। Number 1, जी bookshelf. ओके, क्विक हिफ्जा, वी डोंट हैव दैट मच टाइम। Number 2, picture. यस पिक्चर, Number 3, painting. वेरी गुड। नंबर 10 पे क्या है हिफ्जा? Wall. वेरी गुड। नंबर 11 पे क्या है हिफ्जा? Ceiling. वेरी गुड, सीलिंग। दूसरी वाली छत को क्या कहते हैं? रूफ। और ये क्या है आपके पास? सीलिंग है। 29 पे क्या है हिफ्जा? Ceiling. Sofa. वेरी गुड, सोफा है। ओके एंड इसके अलावा आपका 19 पे क्या है हिफ्जा? Where is 19? Pillow. It's not a pillow, it's a cushion. There's a Cushion. difference between the Sorry, two. cushion. Okay, pillow. अच्छा, Cushion. ये जो बेसिकली जो 29 पे ना, ये आर्म चेयर कहलाती है। ठीक है। आर्म चेयर वो चेयर होती है जिसमें आपको Armchair. हाथ रखने की जगह होती है। ठीक है। सोफा भी कह सकते हैं आप, आर्म चेयर भी कह सकते हैं। Armchair. ठीक है। ओके जी। तो देन लास्टली मैम वी इसके हैव लिए कोई और वर्ड यूज होता है? मैम काउच। सोफा के लिए अगर कोई और वर्ड यूज होता है काउच इंग्लिश में? काउच यूज कर सकते हैं आप, काउच। और काउच से मुझे एक और वर्ड Okay. आ गया, काउच पोटैटो। काउच पोटैटो एक ऐसा आदमी को कहते हैं जो बहुत सुस्त हो। Oh my God, my sister is Couch such a potato. couch. हाँ, बड़ा अच्छा वो है, Okay. funny सा वो है कि इसमें, like my sister is couch potato. She doesn't move at all the whole day. She just keeps on watching the television all the time. जो लोग नहीं होते बस वो पॉपकॉर्न का या चिप्स का थैला पकड़ लेते हैं और बैठ जाते हैं सोफे पे टीवी के आगे, तो those kind of people are couch potato. Okay, thank you very much. Exactly. Okay, thank you very much, Ms. Okay. Hifza. Okay.
Okay, ji. So now we are starting here properly the topic which we are assigned today, and that is the use of there was and there were. Previously in the class we have used about there is and there are, and now we'll be using the past tense for that. Like if we have to show or to introduce a singular noun, okay, and if it's in the past tense, so we will use the word there was. And similarly, if we have to introduce a plural noun, and if it's in the past tense, we'll use there were, right? So for this, I would like to invite Miss Dua. Please unmute yourself or read कीजिए. Come on, Dua. अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम अस्सलाम जी. दुआ फटाफट स्लाइड पढ़िए. स्टार्टिंग 3 आप पढ़ेंगी. There was where past. There was to introduce singular noun and Yeah. there were. there were. मैम where There were. Where में याद There रखिए W. आज दुआ बेटा सुनिए. Where की स्पेलिंग में W के बाद H आता है. Where are you going? Okay, ये were है. There were. there were to introduce singular noun. There were for plural noun. Plural noun. Okay. There was a girl under the tree last evening. Okay. Next. There were some There were. bodies. Be clear, Dua. Again, there were some bodies There were some bodies floating on the river 2 weeks ago. 2 weeks ago. 2 weeks ago. Okay. एक और There sentence was पढ़िएगा. a rat on the yes. There was a rat on the Roof. floor in your kitchen last night. अच्छा यहाँ पे roof लिखा हुआ है, but you see floor is better. There was a rat on the floor in your Yes. kitchen last night. Okay जी. Okay, now thank you so much, Miss Dua. Now I would like Mr. Nasir. Please unmute yourself और last के 3 sentences Nasir आप पढ़ेंगे हमारे लिए. अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम. नासिर साहब कैसे आप? ठीक है? अल्हम्दुलिल्लाह मैम। Last ठीक है ना? 3 sentences. Yes, you have to read these 3 sentences for us, but be loud, right? Okay. There were many boys sleeping in the class yesterday. Okay. There was a man disturbing the public in the bus stand this morning. Okay. Okay. There were many people fighting for the nation in the past. Okay. Absolutely beautiful. Thank you so much, sir. Okay, now there is an activity for us. Okay, now you can mute yourself. Okay, now there's an activity here, and there are 2 kind of pictures in front of us. In one, there's written my village now. Okay, village matlab gaon, and my village in 90s, in the past. So you can yourself by looking at the pictures, you can feel the difference, like the village is now turning into a modern village, and previously in the 90s. याद रखिए जो S लिखा होता है ना स्मॉल, इसको हम पढ़ते हैं 90s से मुराद है 90 से लेकर 99 तक का जो टाइम है. ओके, 90s वो आपका क्या है. तो उस वक्त और इस वक्त की विलेज में क्या डिफरेंस है वो हमें बता रहे हैं. ठीक है जी. तो फॉर दिस एक्टिविटी आई वुड लाइक, अच्छा वजिया इज नॉट इन द क्लास टुडे. आई थिंक शी इज नॉट देयर. मिस वजिया. No. Okay. Okay, Ikra, please unmute yourself. और आप जो है ये आप विलेज के इसके बारे में पढ़ेंगे. वालेकुम अस्सलाम जी. बजिया आप जो है इसके बारे में पढ़ेंगी मॉडर्न वाले जो विलेज है. माय विलेज नाउ प्लीज. There are many story buildings in my village now. There are 3 schools. There is a hospital in my village. There are many vehicles. There is a shopping mall in my village. There is an indoor stadium in my village. Absolutely beautiful. Okay जी. और यहाँ से हम बुलाएंगे, यहाँ से हम, अच्छा क्या नाम है इसका, मिस इकरा इज देयर जी. इकरा मुझे बताइए क्या आप इसमें कुछ और सेंटेंसेस ऐड कर सकती हैं कि अगर एक मॉडर्न आप विलेज के बारे में बात कर रही हो तो क्या आप और ऐड कर सकती हैं? Yes, ma'am. ऐड कीजिए कोई देयर इज के और देयर आर. There is a university. Yes, ma'am. Okay, ma'am. There is a university in my school, in my village.
वेरी गुड, ब्यूटीफुल। और बताइए। Okay. There are many gardeners ओके in my village. ओके, और बताइए। मॉडर्न मॉडर्न टेक्नोलॉजी में क्या हो सकता है, आप बताइए। Uh, स्कूल्स, हॉस्पिटल्स और शॉपिंग मॉल्स हैं, yes. इंडोर स्टेडियम्स हैं, सिनेमा हॉल्स हो सकते हैं, Yes. ठीक है जी, और कॉलेजेस हो सकते हैं, अलॉट मोर Okay, थिंग्स। ma'am. There are hot top roads in my village. Very good, amazing. Okay, amazing. Okay, now I would like There are tall buildings in my village. ओके, टॉल बिल्डिंग के लिए हम स्काई स्केपर्स का वर्ड भी यूज कर सकते हैं। ओके Okay, ma'am. ओके Yes, ma'am. ओके जी। सर वकास साहब, प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ, एंड जो आपका 90s वाला विलेज है इन द पास्ट वो आप पढ़ेंगे। वकास साहब, क्या क्या विलेज में था प्लीज। There are several thatched houses in 90s. अच्छा, थैटिस हाउस का मतलब है जो घास फूस के बने हुए घर नहीं होते थे पहले जमाने में। अब भी कुछ जर्मनी और कुछ इलाके ऐसे हैं अफ्रीका के जहाँ पे इस तरह के घर पाए जाते हैं, जिनकी छत को बेसिकली किसी पौधे या किसी फसल से कवर किया जाता है ठंडक के लिए। ठीक है ना, तो ये पिक्चर में आपको जो नजर आ रहे हैं, तो ये हाउसेस आप देख सकते हैं इसमें। ठीक है जी, चलिए आगे चलिए। There was a central school. ओके, There were two rural clinic रूरल, centers. रूलर, There were रूलर का not मतलब होता है, एक्सक्यूज मी मिस्टर वकास, रूरल, रूलर का मतलब होता है देहाती, और इसका ऑपोजिट क्या होता है, अर्बन यानी शहरी। ठीक है जी। जी, आगे There चलिए। were not many vehicles. There were not carpet road. There were walls in every नो garden. नो नो, इट्स There नॉट were वॉल्स। वकास प्लीज सेंटेंस को दोबारा पढ़िए, सेकंड लास्ट सेंटेंस को वकास। wells in every garden. यस, यानी हर बाग में Wells कुआं का क्या मौजूद मतलब है? है, कुएं। ओके, There were bullock carts. हाँ, Bullock ब्लॉक ब्लॉक bullock ब्लॉक bullock कार्ट्स carts कहते हैं in भैंस गाड़ी को। व्हाट इज दिस, क्या कहते हैं इसको आप लोग, आई डोंट नो। गधा गाड़ी नहीं, गाय की गाड़ी को क्या कहते हैं आप लोग, बैलगाड़ी, बैलगाड़ी। ठीक है जी, बैलगाड़ी। ओके bullock. ठीक है, ओके अमेजिंग। अच्छा, आप इसको कंपैरिजन के तौर पे भी कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, there were there was a central school in my village in the 90s, but now there are 3 schools. There were not many vehicles, but now there are many vehicles. Now you're seeing I'm using was and weren't and wasn't and was or were for the past tense जब मैं 90s की बात कर रही हूँ, और जब मैं अभी की बात कर रही हूँ तो I'm using there are, there is, जो हमने लास्ट लेसन में किया था। ठीक है, ओके जी। सिमिलरली नेगेटिव का रूल मैं आपको पहले बता चुकी हूँ। व्हाट इज द रूल फॉर नेगेटिव? व्हेन यू हैव टू मेक द सेंटेंस नेगेटिव, what you have to do, you just have to put the word not after the first helping word. The word not after the first helping word, you can see the examples over here. There wasn't a railway station in my village 5 years ago. There wasn't a railway station in my village 5 years ago. There weren't skyscraper. You see, अभी जो मैं ईशा आपको बता रही थी, skyscraper buildings का मतलब होता है आसमान को छूती हुई, बहुत ही बुलंदो बारा, lofty buildings. Okay, skyscraper buildings, ये नोट कर ले, बहुत अच्छा वर्ड है। ठीक है, ये ऐसी बिल्डिंग्स के लिए इस्तेमाल किया जाता है जो बहुत ऊंची हो। सो देयर वरंट स्काईस्केपर बिल्डिंग्स 100 years ago, 100 साल पहले आसमान को छूती हुई लंबी और बड़ी इमारत मौजूद नहीं होती थी। There wasn't a national school in our area in 2009. हमारे इलाके में कौमी स्कूल या नेशनल स्कूल से मुराद यहाँ पे एक मॉडल स्कूल या बड़े स्कूल है, तो 2009 तक हमारे वहाँ पे कोई भी ऐसा स्कूल नहीं था। There weren't luxurious cars in 2000. 2000 सन में बहुत ज्यादा आरामदेह गाड़ियां मौजूद नहीं थी, लेकिन 2000 24 साल पहले की बात हो रही है। ठीक है, अब जिस किस्म की लग्जूरियस कार्स आ रही है वो पहले ऐसी कार्स मौजूद नहीं थी। ठीक है, आई होप यू आर क्लियर विद द कांसेप्ट ऑफ नेगेटिव। नाउ मैंने आपको पहले ही बताया था कि देयर आर 2 डिफरेंट वेज ऑफ सेइंग नो, या तो आप नो कह सकते हैं, नॉट कह सकते हैं। मेकिंग इंट्रोगेटिव क्वेश्चनिंग के लिए आपको क्या करना पड़ता है, जो आपका फर्स्ट हेल्पिंग वर्ब होता है उसको आपने सब्जेक्ट से पहले लाना पड़ता है। ठीक है, अब यहाँ पे तो हमारे पास कोई सब्जेक्ट नहीं है, तो हम देयर को अपना सब्जेक्ट कंसीडर करेंगे, राइट। तो फिर ये किस तरह हो जाएगा? अच्छा, मुझे एक स्टूडेंट चाहिए यहाँ से, किसको ले लेते हैं,
मिसेस यास्मीन प्लीज अनम्यूट कीजिए, ठीक है। मिसेस यास्मीन, मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगी एंड यू हैव टू आंसर मी, ठीक है, यस और नो में, ठीक है जी। और आप बेहतर होगा कि हमने जो पिछली स्लाइड की थी आप उसके अकॉर्डिंगली आंसर करें मुझे। फॉर एग्जाम्पल माई फर्स्ट क्वेश्चन टू यू इज, वॉज देयर अ रेलवे स्टेशन इन माई विलेज 5 years ago? No. पूरा जवाब देंगे Yes, नो। yes, yes. No, there was not a railway station in your village 5 years ago. No, there was no railway station in my village 5 years प्लीज ago. आप थोड़ा लाउडर बोलिए यास्मीन, आपकी आवाज क्लियर नहीं है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर were there skyscraper buildings 100 years ago? Were there skyscraper buildings There was 100 years there ago? were there were no there were नहीं, देखिए देखिए यास्मीन, skyscraper देखिए buildings. अगर आपने शुरू में नो यूज किया तो दोबारा आप नो नहीं नॉट यूज करेंगे। नो, देयर वर नॉट skyscraper buildings 100 years ago, ठीक है यास्मीन? Yes. ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए है यास्मीन, was there a national school in our area in 2009? Yes, there was a national school in our area in 2009. Good, very good. Were there luxurious cars in 2000? Yes, there were luxurious cars in big city in 2000. Okay, absolutely good. Thank you very much, Miss Yasmin. Thank you so much. Okay, now यहाँ पे हमारे पास कुछ फिलर्स हैं। अब फिलर्स के लिए मैं एक एक सेंटेंस के लिए बोलूंगी। सबसे पहले मैं दावत दूंगी अपने सेंटेंस के लिए। दुआ, दुआ जरा इसको पूरा कीजिए। 15 years ago there was dash but there wasn't dash। एक चीज ऐसी बतानी है जो 50 साल पहले मौजूद थी और अब मौजूद नहीं है। 50 साल पहले नहीं है मौजूद। 50 साल पहले क्या था बताइए। मैम वो जो आपने भी मुझे, मैम जो आपने अभी उसको बोला था जरा, जी जी, कुछ भी आप अपनी तरफ से कुछ भी। दुआ बेटा आप चेंज भी कर सकते हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आप चेंज भी कर सकते हो। 50 years ago there was less school but there wasn't any university। कुछ भी बोल सकती हैं आप, ठीक है। In 2000 there were cars but there weren't luxurious cars। Okay, in my childhood there was television but there weren't colored televisions or colored telly, जैसे अभी हमने vocabulary में पढ़ा था, there weren't colored ठीक है trelly। 2000 years ago there were a dash but there wasn't dash। तो आप इस एक्टिविटी को अपने घर पे repeatedly with different objects कर सकते हैं to make yourself practice। Okay, okay, okay जी। अच्छा जी, अब हम फ्यूचर की बात कर रहे हैं, ठीक है। फ्यूचर के लिए मेरे पास कौन है फ्यूचर के लिए जी? तो नासिर साहब को देख लेते हैं। नासिर साहब स्टार्टिंग 4 सेंटेंसेस आप करेंगे, ठीक है, और फिर आपके पास जो है वो तकी साहब करेंगे, कवि साहब, ठीक है। प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ नासिर साहब जी। ठीक है, थैंक यू। अच्छा, अब हम क्या कर रहे हैं, हम फ्यूचर की तरफ जा रहे हैं, ठीक है। There will be a new project next Sunday. Okay, good, very good. There will be a cricket match on 26th of October. October, it's not October। October उर्दू में होता है October। October, okay. जी, There will be a rain in this evening. very good। There will be rain this evening. No 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 no, प्लीज देखिए ये क्या लिखा है, जरा गौर से पढ़िए। There will be rain this evening. No, after that I'm asking about the next sentence। There won't be ethnic wars in the future. Okay, very good, absolutely beautiful। ठीक है जी, तो समझ में आ रहा है कि will be किस तरह काम कर रहा है। अच्छा, इसमें एक चीज जो मुझे आपको बतानी है वो मुझे ये बतानी है कि जो will be है उसकी जो शॉर्ट कॉन्ट्रैक्शन है वो होती है won't। will not be की शॉर्ट फॉर्म क्या है? won't be। ठीक है जी, ये चीज आपको याद रखनी है। अगर मैं बोल रही हूँ there won't be rain today, तो there इसका मतलब है मैं कहना चाह रही हूँ आपसे कि there will be no rain today। ठीक है जी, आई होप दिस कॉन्सेप्ट इज क्लियर टू एवरीवन। ओके जी, अब मैं तकी साहब को जहमत दूंगी। तकी साहब प्लीज आखिरी जो 4 सेंटेंसेस है वो आप पढ़ेंगे। Okay, madam। Hello, hello।
Gigi, you are audible, Mr. जी, okay. There won't be rice and curry for dinner tonight. No, it's not curry, it's curry. Curry Yes, for yeah. dinner tonight. Yes. Okay. There won't be any problem with your friend here Hereafter. Hereafter का मतलब होता है इसके बाद. he- Hereafter का मतलब होता है इसके बाद. इसके बाद आपके दोस्त के साथ कोई Hereafter. प्रॉब्लम नहीं होगा इंशाल्लाह. ओके जी. नेक्स्ट friend hereafter. जी. There won't be any weak student after this course. वेरी गुड. स्टूडेंट्स यानी इस कोर्स को करने के बाद इंशाल्लाह ताला कोई भी तालिब इल्म जो है वो कमजोर नहीं रहेगा इंग्लिश में. ओके जी. नेक्स्ट. There will be touch development in Sri Lanka in 15 years. ओके. In 15 years. No, it's not 15. It's 50 years. 50 years, sorry. टेक का मतलब टेक जो है शॉर्ट फॉर्म है फॉर टेक्नोलॉजी. ओके. देयर विल बी टेक डेवलपमेंट इन श्रीलंका इन 50 years. 50 सालों में श्रीलंका में बहुत ज्यादा टेक यानी कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के हवाले से बहुत ज्यादा क्या हो जाएगी, तरक्की हो जाएगी. ठीक है जी. ओके नाउ सो सेम उसके ही अब ये क्वेश्चंस हमारे पास आ गए. तो मैं वकास साहब को कहूंगी, वकास प्लीज मुझे क्वेश्चंस रीड करके बताइएगा क्विकली. Will there be tech development in 10 years? वेरी गुड. Answer then, na? No. You just have to Yes, read the there will questions. be. No. आप सिर्फ क्वेश्चंस रीड करें वकास. Will there be a movie session in the evening? Will there be any boys with casual dress tomorrow? Will there be rain for next 2 days? Will Very there be any event in the end of इवेंट this से course? पहले भी एक वर्ड लिखा है फेवरल. Will there be a Favorable. favorable event at the end of this course? कि क्या मतलब हम कोई फेवरल पार्टी मनाएंगे इस कोर्स के बाद, ये नहीं मनाएंगे. ठीक है जी. थैंक यू वकास. थैंक यू सो मच. अच्छा जी. वही वाली इस स्लाइड में हमें बेसिकली समझाना क्या चाह रहे हैं कि व्हेन यू हैव टू मेक अ क्वेश्चन विद विल बी, तो आप सिर्फ विल को आगे ले जाएंगे और बी को आगे नहीं ले जाएंगे सब्जेक्ट से. और इसका अगर आपको इफ यू हैव टू रिप्लाई द आंसर फॉर दिस, सो यू विल कैन से यस देयर विल बी, नो देयर वोंट बी, नो देयर विल बी, नो देयर, यस देयर विल बी. ठीक है. इस तरह करके आप इसको रिप्लाई बैक कर सकते हैं. Okay, now there is another activity like positive or negative, and for this I want two people. Okay, जो कि हमें स्टार्टिंग में हम 2 का बनाएंगे और फिर नेक्स्ट उसमें हम 2 का पेयर बनाएंगे. तो फर्स्ट पेयर के लिए मेरे पास इकरा है और हिफ्जा है. प्लीज आप दोनों अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए. इकरा एंड हिफ्जा. Okay, ma'am. ठीक है. हिफ्जा आपको विल बी के जवाब देने हैं और इकरा आपको वोंट बी के जवाब देने हैं. ठीक है जी. ओके मैम. ओके जी. Okay. नेक्स्ट ईयर पहले हम पहला वाला प्रैक्टिस कर लेते हैं. नेक्स्ट ईयर There will be peace and harmony. पीस का मतलब अमन और हार्मनी का मतलब अमन और सुकून. ठीक है जी. इकरा वोंट बी. There won't be violence. वायलेंस का मतलब क्या होता है, हंगामे, शूफुल्स. ठीक है. और जंग और शोर शराबा. ओके जी. नाउ इन 50 इयर्स, आने वाले 50 सालों में कोई भी चीज जिसको आप समझती हैं कि वो मौजूद होगी, आप कह In सकती हैं 50, ये सब बोलने की there जरूरत नहीं है. देयर विल बी से स्टार्ट करें सेंटेंस. there will be flying cars in the Absolutely amazing, future Hifza. in Very in good. Dubai, Wow. not in Pakistan. You see, answer of the day, Hifza. Absolutely amazing. Okay, Ikra, won't be. Okay, ma'am. In 50 There years. won't be. Okay. There won't be rickshaw. And there won't be bullet cars. Yes, Bullet car, absolutely. okay. Yes. Okay, now, into 2035. थोड़ा ज्यादा दूर नहीं, 50 से नहीं, थोड़ा सा कम Okay. करें. 10 साल बाद. There will be more advanced functions in AI. Oh, very good. Okay, absolutely good. इकरा जी, टक्कर का जवाब चाहिए. इकरा won't be क्या नहीं होगा, No, ma'am, नहीं यार. आप वो बताएं. और क्या चीज होगी जो आप समझती हैं कि आने वाले 10 सालों में आपके पास नहीं होती, मौजूद होगी. अभी कह सकती है दुनिया में बहुत ज्यादा जंगलात मौजूद नहीं होंगे आने वाले 10 साल बाद. जिस रफ्तार से हम काट रहे हैं ना जंगलात There- को,
Yes, ma'am. मैम एक जवाब ये भी हो सकता है कि there won't be no any honest people in the Yes, absolutely. Very, you see, important answer. you know, Like we won't be having sincere people. We won't be having a lot of hardworking people, diligent people, because everything will be shifted to robots and you see technology. Very good answer. Okay, now Hifza next. The day after tomorrow. कल क्या होगा और कल क्या नहीं होगा? कल क्लास नहीं होगी okay. और कल क्या होगा? कल छुट्टी होगी. Yes, sir. Okay, so the day after tomorrow. There will be match tomorrow. Very good. Okay, there will be a match tomorrow. Ikra, क्या नहीं होगा There कल? won't. Okay, there won't be match. इकरा भाई जब वो मैच कर आप ये कह सकती हैं हिफ्जा कि देयर विल बी रेन टुमारो सो इकरा कह सकती है सो देयर वोंट बी एनी मैच टुमारो Yes. Yeah, there won't be sunny. ओके ओके अच्छा जी अब हम जरा दो हजरात को थैंक यू वेरी मच लेडीज नाउ आई वुड लाइक टू मिस वजिया भी आ गई हैं वजिया और मिस्टर नासिर लास्ट थ्री के आप लोगों ने जवाब देने प्लीज मिस वजिया एंड मिस्टर नासिर अनम्यूट योरसेल्फ मिस्टर नासिर आप जवाब देंगे विल बी के और मिस वजिया जवाब देंगी वोंट बी के वजिया वेलकम टू द क्लास अस्सलाम वालेकुम वालेकुम मैम मैंने तो अभी ज्वाइन किया है तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है मेरा समझ नहीं बच्चा आया No, don't make any excuse. The patron is in front of you. The teacher is in front of you. We are here to help you. Right? आप कोशिश करें जो नहीं आएगा वो हम आपके साथ हैं. Okay? In 100 years. ये कहना ये चाह रहे हैं कि हम ये बात कर रहे हैं कि हम जो है आने वाले सालों में 100 साल में 10 साल बाद कल परसों 5 साल बाद क्या चीजें होंगी और क्या चीजें नहीं होंगी तो आप इसको विलेज के सेंस में भी डिस्क्राइब कर सकते हैं ठीक है कि आपके गांव में क्योंकि हमने इससे पहले उससे रिलेटेड टॉपिक किया था लेकिन मैं इसको एज अ जर्नल सेंस ले रही हूँ ठीक है जी नासिर साहब व्हाट विल बी देयर इन 100 इयर्स 100 सालों में क्या चीज मौजूद होगी there will be great technological inventions in next 100 years or maybe you see we have a robot around us all the way maybe okay जी वजिया won't be क्या चीज है जो 100 सालों में मौजूद नहीं होगी मैम 100 सालों में तो हम भी मौजूद नहीं होंगे very good absolutely amazing answer like we won't be present after 100 years very good answer ठीक है जी then in 5 years जी नासिर साहब 5 साल में क्या चीज मौजूद होगी the exact thing will be sorry existing I'm not getting it will you please elaborate your answer existing thing will be for the next 5 years for example okay for example like there will be peace for next 5 years for example okay now Wajiha in 2055 what will be there वापडा होगी वजिया एसी होगी will be having a lot of bills right अगर आप ये कहना चाहें कि जैसे कि हर चीज की कीमत बहुत ज्यादा होगी इन 2055 हर चीज की कीमत बहुत ज्यादा होगी तो वजिया इसको आप कैसे कहेंगे okay fine okay अच्छा तो आप कह सकते हैं in 2055 there will be a lot of knowledge in people and there won't be much respect you see for the people so we can go it like that okay ji so finally we are done Shanze welcome to the class there is a question for you to solve at your home like for example now there are ordinary classrooms but in 20 years there will be what smart classrooms even in the countries abroad students don't bring copies and notebooks to their schools
That's a common practice in, you see, Asian countries where the people take the notebooks and then jot down whatever the lecturer is giving. So now they have advanced in their classroom systems. We do have introduced that Google Classroom system, which is very helpful to the children because of the COVID pandemic. But still, you see, we have to go a long way to, you see, to lift the level of education in Pakistan. We all have to work for it. Okay, so it's a very interesting question and activity for you to do at home, or you can also send me in my on my personal number if you want me to assist that. Like grandfather telling his grandson how his generation was better than new generation, यानी कि नई generation से उनकी generation कैसे बेहतर थी. Assume yourself, pretend that you are the grandfather and you are telling your grandson. तो इसके लिए बहुत जबरदस्त किस्म की वीडियोस बन सकती हैं. So I'm not making it like compulsory for all the students, okay, but those who are interested in doing this activity, they can send me on my private number. Okay, okay ji. Now the second and the most important part of the slides, which is ordinal and cardinal number. Okay, so basically the numbers which we use in our common mathematics, which is 1 2 3 4 5, you see, and it's up till infinity. We don't have a limit for numbers. So these numbers are called cardinal numbers. Okay, and they are used to show the quantity of something. How many? We use the word how many with them. How many cups are there? How many books on the shelf? How many cartons in the room? There are a lot more to it. But on the contrary, if you talk about the ordinal numbers, so they are not telling you the quantity, they are telling you the position. Remember, दोनों में क्या फर्क है? कार्डिनल नंबर आपको तादाद बताता है, जबकि ऑर्डिनल नंबर आपको पोजीशन बताता है. फर्स्ट, सेकंड, थर्ड. You see, I am the third child of my parents. He came fifth in the class. Okay, this is the 60th birthday of Pakistan. Okay, so you're getting, and normally it is indicated by th at the end, but you see the spelling is very mandatory to learn because some of them spell very difficult. Okay, for example 60th. अच्छा, जो फर्स्ट सेकंड थर्ड है, इनमें आप देखें कि बेसिकली जो ये सुपरस्क्रिप्ट में जो लेटर लिखा हुआ है, ये इनका लास्ट वर्ड है. तो फर्स्ट का लास्ट वर्ड क्या है? एसटी, सो वी राइट फर्स्ट लाइक दिस. सेकंड का पासवर्ड एनडी, तो वी लाइक एनडी. थर्ड का है आरडी. और इसके अलावा जितने भी हैं फ्रॉम 4 टिल इंफिनिटी, सब में आखिर में क्या आता है आपके पास? टीएच. ओके, so I hope this concept is clear. Again, I'm repeating, cardinal numbers are those numbers which tell you the quantity of some objects or something or some nouns, right? But on the other hand, or ordinal numbers, those numbers which tell you the position of something. Okay, so it's like that. Now, okay, so this is a kind of an example for cardinal and ordinal numbers, and we do have. Acha, may I know that is there any person who is like a mathematics teacher who feels him or herself that he is best at mathematics? जरा अपना हाथ उठाइएगा और चैट बॉक्स में मुझे बताइएगा कि कौन मैथ्स में बहुत माहिर है यहाँ. Please, anybody who thinks he or she is very good at mathematics? Why there's a silence on the group? जी, चैट बॉक्स में बताइए. No one? Oh my God. Yes, okay, कवि साहब, good, good. Okay जी. अच्छा जी, तो सबसे पहले तो मैंने आपको कहा था ना कि आज का जो आपको लेक्चर है ना, it will more sound like mathematics lecture than English lecture, because we are going to do this counting and this numbers kind of stuff in the slides today. So there is a list of cardinal numbers, like for example 0. 0 is also known as nil or O, right? O, 0, O or nil. Then we've got 1 2 3 4 5 6, and you all know that, you see, everybody understood this counting thing. But what I will emphasize on in this part of the slide is the ordinal numbers. Okay, 0 is called the zeroth or not number, right? Okay, then we have got first, second, third, fourth, fifth up till now. These are the larger cardinal numbers, which is very much for everyone to understood. You see, whether you're a child, whether you're a teacher, whether you're father or mother, you must know. The thing which confuse the people is that there are basically two types of systems for counting. काउंटिंग करने के दो सिस्टम्स है, ठीक है. एक सिस्टम कहलाता है मिलियन, बिलियन, ट्रिलियन वाला, और एक हमारा पाकिस्तानी सिस्टम है जो हमें कहलाता है लाइक लाख और करोड़, अरब, खरब. ओके, तो ये दो अलग अलग सिस्टम है. अच्छा, अब इन सिस्टम की पहचान कैसे है? फॉर एग्जांपल मैं आपसे साथ आई वुड लाइक टू शेयर समथिंग हियर.
फॉर एग्जाम्पल जैसे कि आपके पास एक नंबर लिखा हुआ है लाइक 10029 ओके एंड 3 फॉर एग्जाम्पल। अगर मैं इसमें और यहाँ पे मैं एक और 2 ऐड कर देती हूँ, ठीक है जी, ये 1 2 3 4 5 6 7 डिजिट नंबर है, राइट। अब इस 7 नंबर डिजिट को मैं यहाँ पे एक और दफा कॉपी कर लेती हूँ, ठीक है, 00293। अच्छा जी, अच्छा अगर मैं फॉर एग्जाम्पल इसके हर आफ्टर एवरी 3 डिजिट के बाद कॉमा, आफ्टर एवरी 3 डिजिट, सॉरी 3 डिजिट के बाद कॉमा होगा, तो हम इसको क्या कहेंगे, ये कौन सा सिस्टम है, मिलियन ट्रिलियन वाला। लेकिन अगर लास्ट कॉमा 3 डिजिट के बाद और इसके बाद 2 डिजिट के बाद कॉमा होगा, तो ये कौन सा होगा, पाकिस्तानी सिस्टम। इसको हम किस तरह पढ़ेंगे, इसको हम पढ़ेंगे यूनिट 10 100,000 10,000 लाख 10,000 100,000 एंड मिलियन। ये है 2 मिलियन 100,000 293, जबकि ये पाकिस्तानी सिस्टम है, ठीक है, जिसमें हम इसे पढ़ेंगे 21 लाख 293, ठीक है जी। अब कहने का मकसद क्या था, कहने का मकसद ये था कि आपके पास 2 सिस्टम है, लेकिन ये जो आपके जो स्लाइड्स है इसमें हम सिर्फ मिलियन वाले सिस्टम को डिस्कस कर रहे हैं। मिलियन के लिए क्या जरूरी है, मिलियन के बाद 6 जीरो आते हैं, यानी 6 डिजिट होने चाहते हैं, 10⁻⁶, तो हम इसे क्या कहेंगे, 1 मिलियन। पढ़ते रहते ना, हम यूट्यूब पे देखते रहते, 1 मिलियन व्यूज हो गए, 2.5 मिलियन व्यूज हो गए, 7 मिलियन व्यूज हो गए। तो मिलियन का मतलब है क्या, आपके पास 10 लाख, 10 लाख जो होता है वो 1 मिलियन के बराबर होता है, ठीक है जी। फॉर एग्जाम्पल अगर आपको 1 मिलियन एंड 1 लिखना है, तो आप 1 मिलियन लिखेंगे और यूनिट प्लेस पे 1 ऐड कर देंगे। अगेन 2 मिलियन कैसे लिखेंगे, कि जो मिलियन वाली जगह है वहां पे आप क्या कर देंगे, मिलियन लिख देंगे। और अगर आपको 1 बिलियन लिखना है, तो याद रखिए कि 1 बिलियन का मतलब होता है 1000 मिलियन। 1 बिलियन का मतलब होता है 1000 बिलियन। तो मैंने पहले यहाँ पे 1000 लिखा और मिलियन के फिर 6 जीरो लगा दिए। और अगर मुझे 1 ट्रिलियन लिखना है, तो 1 ट्रिलियन का मतलब क्या है, 1000 बिलियन। ये क्या है, 1 बिलियन जो होता है वो 1000 मिलियन के बराबर होता है, और 1 ट्रिलियन जो होता है वो आपके जो है 1000 बिलियंस के बराबर होता है, यानी 1 2 3 सेट्स, ठीक है जी। तो ये आपका क्या होगा, इसको हम अगर शॉर्ट फॉर्म में बोले तो 10⁻12, 12 का मतलब है तादाद, जीरो की तादाद, ठीक है। और यहाँ पे 10⁻9 बिलियंस को कहेंगे, और आपके पास मिलियन को क्या कहेंगे, 10⁻6। आई होप दिस कॉन्सेप्ट इज क्लियर, ओके जी। फिर हमारे पास फ्रैक्शंस आते हैं। फ्रैक्शंस का मतलब होता है किसी एक साबुत चीज का कोई हिस्सा। अब वो हिस्सा क्या हो सकता है, वो हिस्सा हो सकता है आधा। आधा का मतलब क्या होता है, आपने ये फॉर एग्जांपल सर्कल शेप ली और ये जो इसका आधा हिस्सा है, तो ये अब क्या है, ये 1.5, ठीक है जी। फिर आपके पास क्या है, 3, अच्छा ये एक अलग तरीके से लिखा है 3 हाफ्स। 3 हाफ्स इज समथिंग, 3 हाफ्स ड्रॉ करने के लिए मुझे पहले एक 1 इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा, ठीक है जी। 1/3 में आपको ड्रॉ करके दिखा देती हूँ। 1/3 का मतलब ये कि आपने इसको 3 बराबर हिस्सों में कन्वर्ट किया है, ठीक है, और उसमें से एक शेडेड है। ऊपर वाला जो डिनोमिनेटर होता है ना, न्यूमिनेटर, वो हमेशा शेडेड होता है, और डिनोमिनेटर जो होता है वो टोटल नंबर ऑफ पार्ट्स होते हैं, ठीक है। इसी तरह आप 1/5 ड्रॉ कर सकते हैं, और जरूरी नहीं कि आप सर्कल पे ड्रॉ करें, आप इसको किसी भी शेप में ड्रॉ कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको 1/4 ड्रॉ करके दिखा देती हूँ, तो 1/4 लाइक दिस। आई होप कि इस क्लास के बाद ना मेरे पास मैथमेटिक्स के लोग जो है मैथमेटिक्स पढ़ने के लिए जो ना मैसेज करना शुरू कर देंगे। ओके जी, ठीक है। तो 1/4 को आप इस तरह दिखाएंगे कि न्यूमिनेटर को आप शेड कर देंगे, और जो टोटल नंबर है उसमें न्यूमिनेटर शामिल हो 1 2 3 4 तो आप ड्रॉ कर लेंगे, ठीक है। तो इसको आप पढ़ेंगे कैसे इंग्लिश में, दिस इज इंपॉर्टेंट, लाइक हाउ विल यू रीड। फॉर एग्जाम्पल मैं पहले आपको ऑर्डिनल नंबर्स पढ़ के बताती हूँ। वी हैव गॉट 0th 1st 2nd 3rd 4th 5th, इट्स नॉट 5th, इट्स 5th, 6th 7th 8th 9th 10th 11th 12th 13th 14th 15th 16th 17th and so on, like, and here I've already told you. Acha, this is interesting part, this is interesting when you talk about decimals. Decimals का मतलब होता है अशाइया, okay, जो आपके डॉट वाले जो होते हैं, इनको पढ़ने का इंग्लिश में खास तरीका होता है। Why we are making you study all these things? Because आप कभी शॉपिंग करने जाते हैं तो on the price tag you might have seen the numbers written like this, or sometimes the prices are in decimals, or sometimes at any corporate part you can read these numbers in a better way, ठीक है। इसको पढ़ने का तरीका ये होता है, ये नंबर जो लिखा हुआ है this is 1 point, what do we read, decimal को क्या पढ़ते हैं, point, 1.125, इसको हम कभी भी
1.125 नहीं पढ़ेंगे। डेसिमल के बाद जितने नंबर होते हैं उन सबको हम क्या करते हैं, अलग अलग करके पढ़ते हैं। ठीक है, आई होप इट्स क्लियर, राइट? ओके, और एक और हमारे पास नीचे एक और एग्जांपल दी हुई है, वो क्या है, आप इसको 0.3 या सिर्फ 0.3 कह सकते हैं। ठीक है, किसी का अगर कोई इसके मुतालिक सवाल है तो वो पूछ सकता है, ताकि मैं आगे स्लाइड पे जाऊं। ठीक है जी, किसी का कोई सवाल है? ओके वकास, आज रिकॉल हो गया आप लोग सबके नंबर्स, है ना? आप लोगों को मैथमेटिक्स की टीचर भी मिल गई आज। ओके मैम, ओके जी, ओके, नोबडी हैज क्वेश्चन। अच्छा, ये एक छोटी सी एक्टिविटी है, इसको आप करना चाहें तो यू कैन डू इट, लाइक डू इन वर्ड्स है पढ़ने के लिए। हम क्विकली जो है, हमारे पास कौन है, हिफ्जा हो गई है, नासिर साहब ने भी अपनी अटेम्प्ट कर ली है, कौन रह गया मुझे बताइए? अच्छा, जो अभी ज्वाइन किया था, शिजा, शिजा इज देयर, शिजा आर यू देयर? शिजा इज नॉट इन द क्लास कैन। ओके जी, तो वजिया प्लीज जरा मुझे स्टार्टिंग जल्दी से, जो इवन नंबर है वजिया सिर्फ वो पढ़ने हैं, जो इवन नंबर है, नॉट ऑड वन, इवन। इवन समझती हैं वजिया? जी वजिया। मैम मैं भी नहीं कर सकूंगी, बस मैं सिर्फ क्लास ले रही हूँ, तो अब अच्छा, ओके कोई ओके और ओके कर देगा। ओके ओके, डजंट मैटर। सॉरी ओके मैम। जी, ओह दैट्स ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं है डियर। ओके जी, सो हिफ्जा बेटा स्टार्टिंग 5 पढ़िए, क्विक क्विक। 270, वेरी गुड। 984, Okay. 5,600, 8,156, Right. 7,009. ओके ओके, नेक्स्ट हमारे पास है, नेक्स्ट हमारे पास है ईशा। प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ ईशा, और लास्ट जो है वो आप पढ़ेंगी 6 to 10। 20,016, 25,216, 123,456, राइट, 2,154,658, 28,576,983. एब्सोल्युटली ब्यूटीफुल। ठीक है जी, आपको समझ में आ गया होगा, ये काफी डिटेल लेक्चर्ड है, तो आई थिंक जितना मैं समझा सकती थी वो मैं समझी। अच्छा जी, अब हमारे पास है ये, तो इकरा, चले जी, स्टार्टिंग 2 कीजिए इकरा, कम ऑन। Yes, ma'am. 230, 234, वेरी गुड, 7,803, ओके वेरी गुड, ओके 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 32,142. ओके ओके इनफ। ओके, अब हमारे पास है नासिर साहब, ये जो ये वाले 3 हैं ये आप करेंगे, ये वाले 3। जी नासिर साहब अनम्यूट कीजिए अपने आप को। आई थिंक नासिर साहब अपने आप को अनम्यूट नहीं कर पा रहे। ओके जी, यास्मीन आप पढ़िए डियर। यस मैम। जी, ये जो मैंने हाईलाइट किए। 6,32,564. एक्सक्यूज मी मैडम, आप पाकिस्तानी सिस्टम नहीं पढ़ रही हैं। मैंने आपको बताया था कि पाकिस्तानी सिस्टम की पहचान ये होती है कि उसमें लास्ट 3 डिजिट के बाद कॉमा होता है और फिर हर 2 डिजिट के बाद कॉमा होता है। यहाँ पे आप 3 डिजिट के बाद कॉमा देख रही हैं, ये इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ नंबर्स है। इसको आप पढ़ेंगी 632,000। 6 जी 564. और दोबारा पढ़िए पूरा। 632,000. सॉरी मैम, मुझे समझ नहीं है आपकी बात। अच्छा अच्छा, ये थोड़ा सा जो ना डिटेल लेक्चर है, मैं कोशिश करूंगी कि अगर एंड में टाइम बचता है तो दोबारा बता दूं। देखिए असल में ना ये फैमिलीज के नाम होते हैं। चलो मैं कोशिश करती हूँ, मैं एक सेकंड देख लूं और कितनी स्लाइड्स हमारे पास है। ओके ठीक है, हमारे पास सिर्फ टंग ट्विस्टर है तो हम डिटेल में बात कर सकते हैं। अच्छा जी, अब जरा गौर से, जरा आपने जो है ना बेल्ट्स टाइट बांध ले, मैं आपको चीज समझाने जा रही हूँ। देखिए फैमिलीज होती हैं, नंबर्स में क्या होती है, फैमिलीज होती हैं। जब हम नॉर्मल नंबर्स की बात करते हैं तो सबसे पहली फैमिली आपके पास होती है यूनिट की फैमिली। जो आखिरी 3 डिजिट होते हैं किसी भी नंबर में, वो यूनिट की फैमिली को वो कर रहे होते हैं। ठीक है, हर
हर उसमें यूनिट फैमिली में 3 मेंबर्स होते हैं। यूनिट फैमिली के बाद आपके पास आ जाती है 1000 की फैमिली। कौन सी फैमिली आ जाती है? 1000 की फैमिली। ठीक है, दिस इज फॉर ऑल। ओके, ये सिर्फ ये नहीं कि मैं इनको समझा रही हूँ, सब समझे। 1 2 3। ठीक है, यहाँ इसलिए हम कॉमा लगाते हैं, यहाँ से फैमिली चेंज हो जाती है। इसके बाद आती है मिलियन की फैमिली। ओके, नाउ वी हैव गॉट द मिलियन फैमिली। क्या होती है हमारे पास? मिलियन की फैमिली होती है, राइट। और मिलियन की फैमिली में भी 3 मेंबर होते हैं। ठीक है, जो कॉमा होता है। और इसके बाद हमारे पास बिलियन की फैमिली होती है। ठीक है, उसमें भी 3 मेंबर्स होते हैं। अब मसला ये है कि हर मेंबर, जैसे ये तो अलग ही है कि यूनिट 10 100, यहाँ पे कौन होता है? यूनिट होता है फर्स्ट पोजीशन पे, फिर 10 होता है, फिर 100 होता है। 1000 वाली फैमिली में भी 3 मेंबर्स हैं। ठीक है, यहाँ पे पोजीशन पे है 10, यहाँ पे 10, यहाँ पे 100 और यहाँ पे 1000। और सबके साथ क्या क्या वर्ड लगेगा? ये 1000 फैमिली का नाम। यानी इस पोजीशन को मैं, इस प्लेस वैल्यू को मैं पढ़ूंगी 10,000। ठीक है, 1000 पढ़ूंगी, ओ सॉरी। ठीक है, इसको मैं पढ़ूंगी 100,000 और इसको मैं पढ़ूंगी 1000,000। ठीक है जी। ये इसी तरह मिलियंस में भी 3 जगहें होती हैं, 3 फैमिली जगह होती है, जिनमें पहला होता है 10 यानी 10 मिलियन, दूसरा होता है 100 यानी 100 मिलियन, और तीसरा होता है 1000 यानी 1000 मिलियन। सिमिलरली बिलियन में भी यही होता है, 100,000। ठीक है, और हमारे पास होता है फिर 100, सॉरी एक सेकेंड, 10 लिखना था पहले, 10 100 और 1000। ठीक है जी। अच्छा जी, अब आपको ये बोलना नहीं पड़ता कि ये 1000 बिलियन है, बल्कि आप इसके, फॉर एग्जाम्पल मैं एक नंबर बोल रही हूँ, कोई सा भी नंबर मैंने यहाँ से लिया, ये लिया मैंने 3 2 1। ठीक है, फिर मैंने लिया 4 2 8 1। फॉर एग्जाम्पल मैंने ले लिया 4 5 2। ठीक है, और मैंने यहाँ ले लिया 0 6 1। ठीक है जी। अब मैं इस नंबर को देखिए पढ़ूंगी कैसे, गौर से सुनिए। सबसे पहले मैं इस नंबर को पढ़ूंगी और इसके बाद इसकी फैमिली का नाम लूंगी, फिर मैं इस नंबर को पढ़ूंगी और फिर मैं इसकी फैमिली का नाम लूंगी, फिर मैं इस नंबर को पढ़ूंगी और मैं फिर इस फैमिली का नाम लूंगी। यूनिट की फैमिली का हम नाम नहीं लेते। अब नाउ कॉन्शियसली सुने कि मैं नंबर किस तरह पढ़ रही हूँ। दिस नंबर विल बी read as 321 billion 281 million 452,061. Is it clear? Yes. ओके अच्छा, एक और मिसाल आपकी ले लेते हैं। एक और मिसाल कौन सी ले लेते हैं? एक और नंबर में लिख के दे रही हूँ, इतना बड़ा तो नहीं, थोड़ा छोटा लिखूंगी, लेकिन हम आपको एक नंबर लिख के दे रहे हैं। अब आप मुझे पढ़ के बताइए कि वो नंबर क्या है। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास था 1000। ठीक है, नंबर आपके पास ये है 6 2 1 3 2 0 और 4 2 5। चले जी, पढ़ के बताइए। 621 million. 621 million, गुड, वेरी गुड, शाबाश। Yes. 320,000. 320,000। 320,000 and 425. एब्सोल्युटली ब्यूटीफुल। समझ में आई यास्मीन? Yes, ma'am. ओके इकरा, चलिए अनम्यूट कीजिए अपने आप को। इकरा ये वाला मुझे पढ़ के बताइए, दिस वन। जी 629 million नो नो, दिस वन, 300 दिस वन। इकरा बच्चा कहाँ जा रहे हो? sorry ma'am 3 million वेरी गुड, 216,547. एब्सोल्युटली अमेजिंग, बेहतरीन। ओके ईशा, ईशा नेक्स्ट वाला पढ़िए वाला, दिस वन। 56,789,256. ओके अमेजिंग अमेजिंग। ओके जी, अब हमारे पास है तकी साहब। तकी साहब जरा ये नंबर पढ़ के बताएं। ये मैं नंबर आपको थोड़ा सा चेंज करके देती हूँ, क्योंकि ये वाले तो हो गए सारे नंबर। आप ये जरा मुझे बताइए 6 9। मुश्किल दूं या आसान दूं तकी साहब? जी मुश्किल दूं आसान दूं? जी जी तकी मुस्तफा साहब, ये नंबर रीड करके कवि बताइए। मुस्तफा sir. कवि, Actually, my screen not show to board. सॉरी मैंने screen not show board mention to word. आपको स्क्रीन नजर नहीं आ रही? Yes. कब से नहीं नजर आ रही? Madam, before 2 minutes ago. अच्छा ओके, 3 minutes. बाकी सबको Okay, नजर आ रही है स्क्रीन? हिफ्जा आप लोग सबको नजर आ रही है स्क्रीन ना?
Yes, Okay. ma'am. अच्छा ओके ठीक है, ओके कभी सब कोई Okay, मसला नहीं, आप इसको रीड करके बता दें मुझे इस नंबर को, इफ यू वांट, अदरवाइज मैं कोई और स्टूडेंट ले लेती हूँ। I am trying. हाँ हाँ प्लीज Actually, डू no, ट्राई। but I am not so to board screen, so not understand to अच्छा ओके screen. फाइन, ओके ओके ओके। हिफ्जा प्लीज म्यूट योरसेल्फ सर, आई एम टेकिंग हिफ्जा। हिफ्जा unmute yourself and please read this. Okay, ma'am. 690 million Very good, 321,001. very good, excellent। जी दुआ, दुआ अगर इसके आगे मैं 7 लगा दूं, आप कैसे पढ़ोगी इसको? 7 billion 690 million हाँ 3000 no no 3020 690, wow, what is this 690? 690 7 billion 69 million no Three- no no 321 690 million 690 million 7 690 billion 690 billion 3020 30 3021 मैम अच्छा चलो मैं, ओके चलो दुआ म्यूट कीजिए, मैं पढ़ के बताती हूँ। ओके ओके ओके, दिस इज 7 billion 690 million 321,001 and 1, right? and 1, ठीक है जी, ओके जी, ओके ओके जी, ठीक है, मेरे ख्याल से ये क्लियर हो गया। ओके बजिया, नाउ आई वुड लाइक यू टू जस्ट रीड these two। How will you read this? ये कौन से नंबर है? ऑर्डिनल नंबर है, ठीक है, कार्डिनल नहीं है। टीएच बता रहे हैं, ऑर्डिनल है, पोजीशन बता रहे हैं। जी वजिया। मैम मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आया। अच्छा आप रिपीटेड वीडियो देख लीजिएगा, ठीक है, जब वीडियो सेंड करेंगे। ओके कोई मसला नहीं है। ओके जी वकास साहब, वकास साहब कहाँ हैं? वकास साहब, वकास इज नॉट इन द क्लास। ओके नासिर साहब, ये लास्ट आप मुझे रीड करके बताएंगे प्लीज। Last one. I will highly 70. appreciate if you read 70th 70 133rd 8.2 कंप्लीट पूरा पढ़िए। 43.8.236 236 नो नो यस 236 पढ़ेंगे, वेरी गुड। ओके नासिर साहब नेक्स्ट। 43.23 नॉट 23.23, पॉइंट वाले बात को अलग अलग नंबर पढ़ना है, एक साथ नहीं पढ़ना, ठीक है? ठीक है, थैंक्स। ओके और लास्ट वाला बताइए। 5800 ओके एब्सोल्युटली गुड, थैंक यू सो मच, 5800 एब्सोल्युटली गुड, थैंक यू सो मच, ठीक है जी। अच्छा अब लास्ट हमारे पास एक सिंगल स्लाइड रह गई है और छोटी सी एक्टिविटी रह गई, बड़ी इंटरेस्टिंग एक्टिविटी है, वो कहलाते हैं टंग ट्विस्टर। क्या कहलाते हैं? टंग ट्विस्टर। ट्विस्ट का मतलब होता है घुमाना, यानी ऐसे अल्फाज है जो आपके मुंह में ना जबान को आपकी घुमा देंगे। सो इसको फन एंड पीपल आल्सो प्रैक्टिस फॉर फ्लुएंसी, और इसके बाकायदा कॉम्पिटिशंस होते हैं। ओके सो इट्स लाइक दिस, तो ये मैं आपको शेयर कर देती हूँ। अब हम देखते हैं कि हम कितने टंग ट्विस्टर्स पढ़ सकते हैं। ओके जी, तो हम शुरू करेंगे अपने टंग ट्विस्टर्स विद वजिया। चले वजिया, जरा फटाफट जो स्टार्टिंग दो टंग ट्विस्टर पढ़ लीजिए। 3 दफा व्हाइट बल्ब बोलना है, फिर ब्लू बल्ब बोलना है 3 दफा, और फिर 3 दफा रेड बल्ब। जी जल्दी जल्दी बोलना है, सो के नहीं बोलना वजिया, रिमेम्बर, वरना मजा नहीं आएगा। जल्दी जल्दी बोलना है 3 बार। जी 3 दफा इस तरह देखिए, व्हाइट बल्ब व्हाइट बल्ब व्हाइट बल्ब, ब्लू बल्ब ब्लू बल्ब ब्लू बल्ब, रेड बल्ब रेड बल्ब रेड बल्ब। मुझे भी नहीं बोला जा रहा। ओके व्हाइट बल्ब व्हाइट बल्ब व्हाइट बल्ब, ब्लू बल्ब ब्लू बल्ब ब्लू बल्ब, रेड बल्ब रेड बल्ब रेड बल्ब। वाओ अमेजिंग, बेहतरीन। चलें जी, इसके बाद वाला सेकंड वाला पढ़िए वजिया। आगे भी सब 3 बार बोलना है? नहीं नहीं नहीं, वो तो जो लिखा हुआ है जिनके आगे सिर्फ उनको, इनको एक ही दफा बोलना है। आइसक्रीम। स्क्रीम का मतलब क्या होता है वजिया, पता है आपको? स्क्रीम का मतलब होता है चीखना।
ठीक है, आइसक्रीम, यू यानी स्क्रीम, मैं चीखती हूँ, आइसक्रीम। मैं चीखती हूँ, तुम चीखते हो, हम सब चीखते हैं किस चीज के लिए? आइसक्रीम के लिए। चलें, अब बताइए। We all scream for ice cream. ओके, Red आप lorry, ओके। red lorry, red lorry, red lorry, नो नो yellow नो नो, lorry, देखिए yellow इधर lorry. देखिए वजिया, इसमें इन पूरे जुमले के बाद 3 लिखा है, तो आपने बोलना है रेड लॉरी, येलो लॉरी, रेड लॉरी, येलो लॉरी, इस तरह। चलें। Red lorry, yellow lorry, red lorry, yellow lorry, red lorry, yellow lorry. वाह, एक थैंक यू सो मच वजिया, अमेजिंग, वेरी गुड। ओके जी, नासिर साहब, इसके बाद वाले 2 आप यहाँ से कीजिए, रेड लॉरी और इनको कीजिए, कम ऑन। चले जी, Red नासिर lorry, साहब। yellow lorry, red lorry, yellow lorry, red lorry, yellow lorry. Sheep should sleep in a shed. ओके जी, नेक्स्ट वाला कीजिए। Sheep should sleep in a shed. Sheep should sleep in a shed. Sheep should sleep in a shed. Sheep वाह, अच्छा should चले, sleep in. फर्स्ट वाला करें, फर्स्ट वाला बहुत मुश्किल है, चले फर्स्ट वाला कीजिए नासिर साहब। White bulb, blue bulb, red bulb. नो नो White नो नो bulb, नो नो, blue ऐसे bulb. नहीं है। व्हाइट बल्ब 3 दफा बोलना है, फिर ब्लू बल्ब 3 दफा बोलना है, फिर रेड बल्ब 3 दफा बोलना है। White bulb, white bulb, white bulb, blue bulb, blue bulb, blue bulb, red bulb, red bulb, red bulb. ओह वाओ, गुड, मुझसे तो बिल्कुल ही नहीं हो रहे। एब्सोल्युटली गुड। ओके जी, नेक्स्ट हमारे पास है यास्मीन साहिबा। यास्मीन साहिबा को भी चैलेंजिंग देते हैं जी। यास्मीन, ये जो मैं हाईलाइट करेंगे आपके लिए, कम ऑन। Okay. She says cheese, zebra, zig and नो, एक दफा नहीं बोलो, zebra. 4 दफा बोलना है, इसको अच्छा मैम रिपीट वो कर रहे आगे हैं। लिखा नहीं हुआ इसलिए. देखिए, वो रिपीट करने का मकसद ये है कि अगर वर्ड को रिपीट करना है ना, तो क्वांटिटी लिखनी है, वरना टंग ट्विस्टर को हम बार बार बोलते हैं। ओके, Cheese. Okay. She says cheese. She says cheese. She says cheese. Zebra, zig and zebra, zig. Zebra, zig and zebra, zag. Zebra, zig and zebra, zag. The bluebird blanks. The bluebirds blanks. The ब्लिंक्स ब्लिंक्स, bluebirds ब्लिंक ब्लिंक्स blinks ब्लिंक्स, blinks. अगेन Four fine fresh fish for you. Four fine fresh fish for you. Four ओके। fine fresh fish for you. अच्छा ओके, लॉरी वाला कीजिए यास्मीन। अच्छा ओके मैम. Red lorry, yellow lorry, red lorry, yellow lorry, red lorry, yellow lorry. ओके, वेरी गुड। ओके, अच्छा वजिया, आपकी टर्न है। अगर किसी की टर्न में वो हो चुका तो प्लीज मुझे बता दीजिएगा। यस वजिया, these 3। Four fine fresh fish for you. Four fine fresh fish for you. एटलीस्ट 3 Four दफा fine रिपीट fresh. कीजिए, 3 दफा रिपीट करेंगे। ओके, He, मैम ये क्या है? Throw. थ्रू Threw. थ्रो की सेकंड He फॉर्म। he threw three. He threw 3 balls. He threw 3 balls. He threw 3 balls. ओह वेरी गुड, अमेजिंग। यस, नेक्स्ट वाला वजिया। Greg grabs. Greg grabs. Greg नो, grabs. ग्रीक। Greek. Greek grabs. Greek grabs. Greek grabs. Greek grabs. Greek grabs. Greek grabs. और वजिया, उर्दू में जो होता है वो बोल सकती है, कच्चा पापड़ पक्का पापड़, बोलिए। कच्चा पापड़ पक्का पापड़, बस इतना. हाँ, बार बार रिपीट करना है इसको। कच्चा पापड़ पक्का पापड़, कच्चा पापड़ पक्का पापड़, कच्चा पापड़ पक्का पापड़. ओके, बेसिकली टंग ट्विस्टर्स फन के लिए होते हैं, ठीक है। ओके हिफ्जा जी, ये वाला, ये 2 आप करेंगे हिफ्जा। Okay, ma'am. चल, ये जो स्टार्टिंग में हो, ये हाईलाइट भी नहीं हो रहे। चले, ये स्क्रीम वाला और उसके नीचे वाला लॉरी वाला, क्विक, एटलीस्ट 3 दफा बोलना है, ठीक है, एक जुमले को। Ice cream, you scream. Well, we all scream for ice cream. Ice cream, you scream. We all scream for ice cream. Ice cream, you scream. We all scream for ice cream. ओ गुड। रेड लॉरी वाला। Red lorry, yellow lorry. ये red lorry या yellow lorry. हाँ, दोबारा ट्राई करें हिफ्जा। यस जी हिफ्जा। हिफ्जा लगता है हंसने में ज्यादा मसरूफ हो गई है। ओके, अच्छा जी, देन वी हैव गॉट इकरा लास्ट वाले 2 कीजिए। 3 दफा बोलना है, 3 दफा। Okay, ma'am. The 33 thieves thought that they thrilled the throne throughout Thursday. The Very good. 33 thieves thought that they thrilled the throne throughout the Thursday.
The 33 thieves thought that they filled the throne throughout Thursday. Okay, Peter, very good. Peter picked a pack of picked paper. Pickled. Peter, पिकल किसे कहते हैं पता है आपको? इकरा, पिकल कहते हैं No, अचार ma'am. को। पिकल पेपर्स कहते हैं जो ये आपकी नहीं मिर्चें जो अचार में जो जैसे सिरके में या किसी चीज में तो उनको पिकल्ड कहते हैं। बाजू का कुकम्बर भी होते हैं जो सैंडविचेस वगैरह में सबवे वगैरह में सर्व करते हैं ना वो लोग, तो वो पिकल्ड पेपर्स या पिकल्ड कुकम्बर्स होते हैं, यानी कि वो सिरके में या अचार के पानी में इस तरह करके कुछ बनाए जाते हैं, तो ये पिकल्ड है। ओके, अगेन रिपीट कीजिए। Peter picked a pack of pickled paper. Peter picked a pack of It's pickled Peter, paper. listen, it's Peter Piper. Peter Piper picked a pack of Pickled pickled paper. peppers. Yes. Okay, okay, Yes. thank you so much, Ikra. Okay, ji, Isha. Okay, ji, Isha. Do this one. You see these two. He threw a 3 balls. He threw the 3 balls. He threw the 3 balls. एक चीज द कहाँ लिखा है पहले मुझे बताएं ईशा। He threw 3 balls. He threw a 3 balls. He आ threw a कहाँ 3 आया balls. है ईशा? आ कहाँ लिखा है बच्चा? He threw 3 balls. Yes, sorry, ma'am. Okay. He threw 3 balls. He threw 3 balls. He threw 3 threw balls. 3 balls. उसने 3 गेंदें फेंकी. Okay. He threw 3 balls. He threw 3 balls. He Okay. threw 3 balls. Next one. Greek grapes, Greek grapes, Greek grapes. Greek. Greek Greek. grapes, Greek. Greek grapes, Greek grapes, Greek grapes. Greek Okay. grapes, Greek grapes. Okay. Amazing. Amazing. Okay जी. Mrs. यास्मीन आपके साथ हो गया टंग ट्विस्टर? Mrs. यास्मीन, have you done? Yes, ma'am. Okay जी. Yes, दुआ रह ma'am. गई हैं. दुआ रह गई हैं. Okay जी. दुआ को बहुत मुश्किल वाला ढूंढ के देते हैं. ठीक है, अभी Yes, कौन सा सबसे मुश्किल वाला है? Last 2 दुआ. चलें जी. Yes, ma'am. दुआ को मुश्किल वाला देंगे ना. The 33. When we can cover the 33. Thieves. चोर को कहते हैं thieves. The 33 thieves thought that they Thought नहीं है. Thought. सोचा. Thought. thought that they Thrilled the throne. See the throat. Ma'am, Thrown. last क्या लिखा हुआ है? Thrown throughout Thursday. Throw on Thursday. Okay, नीचे वाला करिए भी दुआ. Peter Piper. paper. Peter Piper. paper, ma'am. जी, Peter Piper. Peter paper. पेपर नहीं है, पाइपर है. पाइप नहीं होता, पाइप जो पीते लोग हुक्का दार्जिला. यस, पाइपर. पीटर पाइपर. Peter Piper. Yeah. Pick A pack of pickled pepper. मैम लास्ट वाला क्या वर्ड है? Pickled peppers. Okay, amazing. Peppers. Okay, thank you so much दुआ. अच्छा, अब मुझे बताइए, प्लीज रेज योर हैंड चैट बॉक्स में, बताइए कौन रह गया है, किसकी बारी रह गई है जी. Anybody who's left for tongue twister, please? I'm waiting for the reply. Is there anybody who's left? जी, किसकी बारी नहीं आई है टंग ट्विस्टर के लिए? दानी ईशा ने डन कर लिया. और कोई ऐसा बंदा जो करना चाह रहा हो या इसकी बारी नहीं आई हो, they can just write in the chat box. Okay, done. Bajia, good. Isha, done. Right. Anybody else? No.
Done. Okay जी, okay जी. Okay जी. So thank you very much everyone for being such a nice student. और मुझे इतनी देर बर्दाश्त करने का बहुत बहुत शुक्रिया. शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह हमने 7 day of English marathon complete कर लिया है. जिंदगी रही तो इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे. इसका PDF और वीडियो YouTube पे हो जाएगी ऑनलाइन और आप उसका PDF देख सकते हैं. ठीक है. And if you have to anything, I'm here to answer you on my WhatsApp. You can ask me anything. जी दुआ जी कुछ कहना चाह रही है बेटा? मैम होमवर्क एक दफा समझा दें. अच्छा होमवर्क में आपको समझा देती. ठीक है दुआ. ओके बच्चा. ओके जी. सो देखिए होमवर्क बेसिकली तो जितनी भी स्लाइड्स हैं आपको सब प्रैक्टिस करनी है, लेकिन बेसिकली मैंने आपको ये होमवर्क दिया था कि एक्टिविटी नंबर 4 ये आप कर सकते हैं कि ग्रैंडफादर टेल्स हिज ग्रैंडसन हाउ हिज जनरेशन वो बेटर देन. इसको सबसे पहले जॉट डाउन कर लीजिएगा किसी नोटबुक में, कुछ पॉइंट्स बना लीजिएगा और फिर इसका आप ऑडियो या वीडियो वॉइस मुझे भेज सकते हैं. ठीक है. कि जो ग्रैंडफादर है वो अपने बच्चे को बता रहे हैं कि हमारी जनरेशन कैसे बेहतर है आपकी जनरेशन से. ठीक है जी. तो ये आपका होमवर्क है. एंड that's all for today's class. Inshallah Taala will be having class next 8th day of English Marathon from College of English 2024. Thank you so much. Allah Hafiz everybody. Take good care of yourself.